غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ طارق بن زیاد، فاتح اندلس، عالم اسلام کا ایک درخشاں ستارہ۔ اس جوان سال سپاہ سالار کی بدولت مسلمانوں نے اندلس اور اسپین پر 800 سال حکومت کی۔ داستان کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل گلوبل نالج کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میرینا نے فرار کا ارادہ کر لیا۔ اگلے روز اس نے اسی لڑکی کا حلیہ بدلا اور اسے محل سے نکال کر اس کے گھر بھیج دیا اور خود ایک اور جگہ چلی گئی۔ یہ ایک بڑی حویلی تھی جس میں ایک گوت خاندان رہتا تھا۔ وہاں 2 آدمی موجود تھے۔ میرینا نے انہیں بتایا کہ وہ بوڑھے یہودی ساحر کو قتل کر آئی ہے۔ اس نے قتل کی وجہ بھی سنائی اور سارا واقعہ سنایا۔ یہ تو تم نے اچھا کیا ہے، ایک آدمی نے کہا۔ اس معصوم لڑکی کو بچا لیا ہے، اب جو ہوگا دیکھ لیں گے۔ ہمیں ایسی امید تو نہیں رکھنی چاہیے کہ راڈرک زندہ واپس نہیں آئے گا، میرینا نے کہا۔ بربروں کی تعداد بہت تھوڑی ہے، وہ زندہ ہی واپس آئے گا۔ اس آدمی نے کہا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ واپس آ رہا ہوگا تو تم یہاں سے نکل رہی ہوگی۔ تمہیں زندہ و سلامت سے اس تک پہنچانا ہمارا کام ہے۔ دعا کرو کہ اپاس زندہ رہے، ہم تمہیں اس تک پہنچا دیں گے۔ ادھر شہنشاہ راڈرک جادوگری اور سحر کاری کا سہارا لے رہا تھا جیسے اسے 1 لاکھ فوج پر بھروسہ نہیں تھا۔ ادھر مسلمانوں کے کیمپ میں اللہ ہی اللہ تھا۔ طارق بن زیاد نے اپنی سپاہ کو بتا دیا تھا کہ ان کے مقابلے میں 8 گنا سے بھی زیادہ فوج آ رہی ہے اور ہر مجاہد کا مقابلہ 8 آدمیوں سے ہوگا۔ ہر روز فجر کی نماز کے بعد اور جمعہ کے خطبے میں اپنی فوج کو ایک تو اپنا وہ خواب سناتا جس میں اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کی بشارت دی تھی، اور اس کے علاوہ قرآن کی وہ آیات سناتا جن میں اللہ نے مومنین سے فتح و نصرت کے وعدے کیے ہیں۔ ایسا کئی بار ہوا کہ چھوٹی جماعتیں بڑی جماعت پر غالب آئی ہیں۔ یہ آیات پڑھ کر طارق اپنی فوج کو ذہن نشین کراتا تھا کہ چھوٹی جماعت کے افراد اور ان کا امیر اپنے آپ میں کون سی خوبیاں، صلاحیتیں اور زور ایمان کی قوت پیدا کرے تو اللہ اسے بڑی جماعت پر غلبہ عطا کرتا ہے۔ طارق بن زیاد زیادہ تر زور پہلے پارے کی 50ویں آیت پر دیا کرتا تھا۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے دریا کو پھاڑ دیا اور تمہیں راہ نجات دی اور فرعون کی قوم کو غرق کر دیا تھا۔ طارق اپنی فوج کو بتایا کرتا تھا کہ اس آیت میں اللہ کے مخاطب بنی اسرائیل ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے جادوگروں کے چیلنج پر وہ معجزے دکھائے کہ طلسم سامری توڑ دیا اور فرعون کو انگشت بدنداں کر دیا تھا، اور بنی اسرائیل مصر سے بھاگے تو دریائے نیل نے ان کا راستہ روک لیا۔ آگے گہرا اور چوڑا دریا، پیچھے فرعون اور ان کی فوج۔ موسیٰ علیہ السلام نے دریا پر اپنا عصا مارا تو دریا پھٹ گیا اور پانی کے درمیان رستہ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی فوج کے ساتھ گزر گئے، مگر اس راستے پر فرعون اپنی فوج کے ساتھ آیا تو دریا کے دونوں حصے آپس میں مل گئے اور فرعون اپنی فوج سمیت غرقاب ہو گیا۔ لیکن مجاہدین اسلام، طارق اپنے خطبے میں کہتا تھا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 شب و روز کے لیے بلایا تو ان کی غیر حاضری میں بنی اسرائیل نے ایک بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ اسلام کے نام پر سر کٹوانے والے مجاہدوں، حالات کتنے ہی تمہارے خلاف کیوں نہ ہو جائیں، اللہ کی ہی عبادت کرنا۔ اور ایسی کئی اور آیات تھیں جو وہ اپنی فوج کو سناتا اور مجاہدین کے جذبوں میں ایمان کا الاؤ بڑھاتا رہتا تھا۔ دن کے وقت وہ فوج کو اس علاقے میں لے جاتا جو اس نے لڑائی کے لیے منتخب کر لیا تھا۔ اس نے ایسا میدان بھی دیکھ لیا تھا جہاں اس نے اپنی محسوس چالوں سے دشمن کو بکھیرنے کی کوشش کرنی تھی، اور اس نے پہاڑیوں اور ٹیکریوں کی درمیانی جگہوں کا بھی انتخاب کر لیا تھا جہاں اس نے دشمن کے چاند ایک دستوں کو گنے ہجوم کی طرح لانا اور ان پر قہر نازل کرنا تھا۔ وہ اپنے دستوں کو اس طریقہ جنگ کے مطابق جنگی مشقیں کرا رہا تھا۔ طارق بن زیاد کے لیے کوئی شگون اچھا نہیں تھا اور کوئی شگون برا نہیں تھا، وہ شگون کے لفظ سے ہی نا آشنا تھا۔ راڈرک کی فوج تیز و تان سیلاب کی طرح آ رہی تھی، اس سیلاب کی طرح جس کے آگے بند نہیں باندھے جا سکتے۔ میرینا اس حویلی میں جہاں وہ لڑکی کو لے گئی تھی پہلے بھی کئی بار گئی تھی۔ وہ ہر بار ایک نئے بحروف میں جاتی تھی۔ اس حویلی میں کوئی خصوصیت نہیں تھی۔ تولیتا شہر میں کئی ایسی اور حویلیاں تھیں جنہیں دیکھ کر لوگ کہتے تھے کہ یہاں بڑے لوگ رہتے ہیں،
लेकिन इस हवेली के अंदर ऐसी खुफिया सरगर्मियां शुरू हो गई थीं जिन्होंने यूरोप की तारीख बदल डाली थी। ये सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ था जब ओपास पागल बनकर मरीना से झील पर मिला और उसे तफसील से बताया था कि अब मौका है जिससे यहूदी और गोत फायदा उठाकर रॉड्रिक की बादशाही खत्म कर सकते हैं। इसका एक ही जरिया है कि यहूदियों और गोत फौज में वो ऐन लड़ाई के दौरान मुसलमानों से जा मिलें और रॉड्रिक को नुकसान पहुंचाएं। मरीना यहूदन थी, कुछ इस वजह से भी इसका जहन साजिशी था, लेकिन मरीना के दिल में रॉड्रिक के खिलाफ इंतकाम की आग भड़क रही थी। पहले बयान हो चुका है कि रॉड्रिक ने इसकी मोहब्बत का खून कर दिया था। वो ओपास को चाहती थी। ओपास इसे 20 साल बाद तुलिता की झील पर मिला तो मरीना के दिल के जख्म फिर घुल गए। उसने ओपास की बात सुनकर कहा था कि वो रॉड्रिक की पीठ में हंजर घोंपेगी। रॉड्रिक अभी पम्पलूना से चला ही था। रास्ते में उसकी फौज में इजाफा ही होता चला जा रहा था। मरीना ने उसकी पीठ में हंजर घोंपने का बंदोबस्त उसी रात शुरू कर दिया था। उसके पास एक से बढ़कर एक हसीन लड़की थी और उसे बादशाह तक रसाई भी हासिल थी। महल के अंदर की पुरअसरार दुनिया में उसका असर रसूख चलता था। महल में गोत कौम के 3-4 आदमी बड़े अच्छे रुतबों और ओहदों पर मौजूद थे और 1-2 यहूदियों को भी ऐसे ही रुतबे हासिल थे। पहले बताया जा चुका है कि उंदलस में सबसे ज्यादा मजलूम कौम यहूदी थी। यहूदियों की अक्सरियत करीब थी। वो 1-2 यहूदी जो रॉड्रिक की हुकूमत के अहम कुल पुर्जे बन गए थे, इतने चालाक और होशियार थे कि इतने अच्छे ओहदों पर पहुंच गए थे। इनके मरीना के साथ अच्छे मरासल थे। मरीना खुद भी यहूदी थी, इसलिए उसके दिल में उनकी हमदर्दी थी, लेकिन इनके साथ भी वो ऐसी बात नहीं करना चाहती थी कि रॉड्रिक से गद्दारी करे। वो इस हवेली में चली गई। ये एक गोत खानदान की हवेली थी। गोत कौम को सरकारी तौर पर अच्छी पोजीशन हासिल थी। इन्हें फौज में और इंतजामिया में भी ओहदे हासिल थे। इस हवेली में रहने वाले खानदान के बड़ों में राज की एक बात यह थी कि वो वटीजा को नहीं भूले थे और इन्हें राज था कि रॉड्रिक ने वटीजा के खिलाफ बगावत की थी और उसे कत्ल करके खुद बादशाह बन बैठा और गोत कौम की बादशाही खत्म हो गई। इस हवेली में रहने वालों में से एक का नाम जिवास था, जो ओपास का बचपन का दोस्त था। मरीना उसे मिली और ओपास की गैर मुतवक्का मुलाकात सुनाई और वो बातें भी सुनाई जो ओपास ने उसके साथ की थीं। जिवास ने बिलाहिलो हुज्जत इस तजवीज़ को तस्लीम कर लिया। उसने अपने बाप और भाइयों से भी मरीना को मिलवाया और बताया कि ओपास मरीना को क्या कह गया है। बहुत अच्छी बात है, जिवास के बाप ने कहा, और ये तजवीज़ जितनी अच्छी है इससे कहीं ज़्यादा खतरनाक है। कोई भी नहीं मान सकता कि इतनी कम तादाद में हमला आवर उंदलस की 1 लाख फौज को शिकस्त दे सकेंगे। नामुमकिन। अगर गोथ और यहूदी गद्दारी करें भी तो इनकी तादाद कितनी होगी? 15 नहीं तो 20,000 होगी। ये हमला आवरों से मिलकर क्या कर लेंगे? पता रॉड्रिक की होगी। फिर जानते हो क्या होगा? रॉड्रिक एक भी गद्दार को जिंदा नहीं छोड़ेगा और गोथों और यहूदियों के घरों का जो हाल कर दिया जाएगा वो बड़ा ही भयानक होगा। ओपास का ख्याल कुछ और है। मरीना ने कहा, वो कहता है कि मुसलमान लड़ने के इतने माहिर हैं कि उन्होंने थियोडोमिर की फौज को, जो उससे दुगनी थी, जरा सी देर में भगा दिया। आधी से ज्यादा फौज कट गई, थोड़ी सी भाग गई और बाकी सब मुसलमानों की कैदी हो गई। आप सब बुजुर्ग आपस में सलाह मशवरा कर लें। ओपास एक बार फिर आएगा, मैं उसे आपके पास पहुंचा दूंगी। अपने यहूदी बड़ों से भी बात कर लो, जिवास के बाप ने कहा। मरीना ने इस मुहिम में दिन रात एक कर दिया। वो यहूदियों के मजहबी पेशवाओं से मिली, दानश्वरों से मिली और एक रात 3-4 यहूदी जिवास की हवेली में बैठे हुए थे। 3-4 गोत भी थे। वो सब इस मसले पर गुफ्तगू कर रहे थे। मरीना खामोशी से सुन रही थी। हम सिर्फ एक पहलू पर गौर करना चाहते हैं, एक बूढ़े यहूदी ने कहा। आज हम रॉड्रिक के जुल्म सितम का निशाना बने हुए हैं और मवेशियों जैसी जिंदगी बसर कर रहे हैं। रॉड्रिक से निजात हासिल करने के लिए हम हमला आवरों की मदद करेंगे। पता उनकी हुई तो रॉड्रिक की जगह हमला आवर कौम हम पर बादशाही करेगी। ये मुसलमान कौम है। हम जो यहूदी हैं मुसलमानों के जुल्म सितम का निशाना बन जाएंगे। हमारा मंसूबा ये होना चाहिए कि मुसलमानों की मदद ऐसे तरीके से करें कि वो रॉड्रिक को शिकस्त दे सकें और इसके फौरन बाद हम मुसलमानों पर हल्ला बोल दें और इन्हें खत्म कर दें। इसके बाद उंदलस पर गोत और यहूदी मिलकर बादशाही करें। मरीना को ओपास का सारा मंसूबा बर्बाद होता नजर आया। उसने झील पर ओपास से अपने मुतल्लिक कहा था, मैं किसी की बीवी ना बन सकी, माँ ना बन सकी, मैं शैतान बन गई, मुझ में शैतानी हसलतें पैदा हो गईं। उसने ठीक कहा था। अब उसने बूढ़े यहूदी की बात सुनी तो उसके दिमाग ने फौरन एक झूठ सोच लिया। ये मुसलमान यहाँ बादशाही करने नहीं आए,
मरीना ने कहा, उपास ने मुझे बताया था कि ये लोग लूट मार करने आए हैं, इनकी झोलियां भर जाएंगी तो ये वापस चले जाएंगे। ये भला मुमकिन हो सकता है कि 8-10 हजार आदमियों का एक गिरोह इतने बड़े मुल्क को फतह करने की उम्मीद लेकर आया हो। उपास ने मुझे बताया था कि वो और जोलियन इन मुसलमानों को राडरक का तख्ता उलटने के लिए लाया है और उसने इन्हें लालच दिया है कि उंदलस के शाही खजाने में इतने ज्यादा ज़रो जवाहरात और सोना वगैरह है जो सैकड़ों ऊँटों पर लादा जा सकता है। आप इनसे डरें नहीं, ये फौज नहीं, ये लुटेरों का गिरोह है। फिर यूं कहो कि तुम मुसलमानों से वाकिफ नहीं। बूढ़े यहूदी ने कहा, ये जहाँ जाते हैं थोड़ी तादाद में जाते हैं और बड़ी से बड़ी फौज को शिकस्त देकर अतात कबूल करवा लेते हैं। इन्होंने कलील तादाद में होते हुए फारस और रोमा की इतनी ज़बरदस्त बादशाहियाँ ख़त्म कर डाली हैं। देख लो इस्लामी सल्तनत कितनी वसी और अरीज हो गई है। ये लोग लुटेरे नहीं, ये मुसलमान गैर मुस्लिम कौमों के खिलाफ लड़ने को एक अकीदा और मजहबी फरीजा समझते हैं। बूढ़ा यहूदी मुसलमानों की शुजात और फतूहात की तारीख सुनाता चला जा रहा था। मरीना ने उसे रोक दिया। काबिल एहतराम बुजुर्ग, मरीना ने कहा, आप अरब के मुसलमानों की बात कर रहे हैं। ये मुसलमान जो उंदलस में आए हैं ये बर्बर हैं। जंगो जदल और लूट मार इनका आबाई शुगल और पेशा है। इनका जर्नैल भी बर्बर है। ये जंगी कौम है जो कबीलों में बटी हुई है। इन्होंने अपने मुल्क में कौन सी बादशाही कायम कर रखी है कि ये हमारे मुल्क में बादशाही कायम करेंगे। मरीना ने अपने झूठ को पुर असर इस्तदलाल से सच साबित कर दिया और बुजुर्गों को अपना हम ख्याल बना लिया।